ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਕਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਰ ਪਾਓ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਸੁ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਮਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਲਾ ਬਿਤਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਈਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਉ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਫਿਰ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਆ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੁਗੌੜਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन की एक बड़ी प्यारी कथा होंगी है। खंडूर साहिब जी सतगुरु जी सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत लोग गुरु की दीदार करने लिए आते हैं इस ख्याल के नाल कि गुरु नानक साहिब जी बहुत महान सन। जिथे बाबा जी गए गढ़ बगदाद निवाए के मक्का मदीना सभे निवाया, सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पखंड छंडाया, पताला आगास लख जीती धरती जगत सवाया, जीती 9 खंड मेदनी सत नाम दा चक्कर चलाया। जिथे भी गुरु नानक साहिब जी गए गुरु नानक साहिब जी की महिमा पसर गई। ते गुरु नानक साहिब जी तो बाद गुरु अंगद साहिब जी महाराज गुरगद्दी ते विराजमान होए। दुनिया हुण ये भी देखने लिए आउंदी है कि जो गुरु अंगद साहिब जी महाराज ने वो गुरु नानक साहिब जी की गद्दी ते बैठे ने, उन्हां वर्गे ने जां फर्क है। कनिंगम ने गुरु की वडियाई करने गल लिखी है कि गुरु नानक साहिब जी दियां होर बेअंत वडियाइयां ने, पर सब तो वड्डी वडियाई ये कि उन्होंने अपने तो बाद अपने वर्गा भाई लैणा जी नूं लभ लिया। जोगियां दा एक टोला एक ग्रुप खंडूर साहिब की धरती ते आ गया। गुरु के लंगर चल रहे ने, गुरु के दीवान चल रहे ने, संगतां बेअंत आ रही ने। 2-4 दिन जोगी रहे। आखिर इन्हां दा आगू महंत सतगुरु जी दे अगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सतगुरु जी तुहाडे दीदार कीते, तुसीं गुरु नानक दा ही रूप हो। बड़ियां संगतां आ रही, बड़े खर्चा ने, असीं कोई सेवा करनी चाहुंदे हां, दसो की दे जाइए तुहानूं। सतगुरु जी कहंदे किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। कहंदे ने तुहाडे लंगर बहुत चलदे ने, खर्चे बड़े ने, असीं चाहुंदे कोई रिधी सिद्धी तुहानूं दे जाइए। सतगुरु जी कहंदे सानूं लोड़ नहीं इन्हां रिधियां सिद्धियां दी। ये लंगर गुरु नानक साहिब जी दे ने, गुरु की संगत दे ने, इन्हां नूं ते संगतां ने चलाउणा है। सिद्ध महंत बहुत ही जिद विच आ गया, अड़ गया कि कुछ ना कुछ तो देना ही है, तुहानूं लेना पैना। ते सतगुरु जी ने बड़े प्यार नाल कहा महंत जी जे कुछ देना ही है थोड़ी जी गरीबी दे जाओ, सानूं गरीबी की लोड़ है। महंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ये तुहाडे घर च पहलां ही बड़ी है, साडे घर च ते रिधियां सिद्धियां दा हंकार है। ये गरीबी है कि सब कुछ हुंदियां निर्माण रहना। गुरु अमरदास जी का इतिहास पढ़ो, गुरगद्दी ते बैठ के घलन तो बाद हुण जिहड़े विरोधी सन गुरमत दे जलाओ नूं बर्दाश्त नहीं सन कर सकते। गुरु नानक साहिब जी तो लैके अज तक दा इतिहास पढ़ के देख लो, वो लोग जिहड़े मनुखता नूं कर्म कांडां च वहिमां भरम जालां च फसाउणा चाहुंदे ने, उन्हां लोगां ने रज के गुरमत की विरोधता की और अज कर रहे। सीधे असीधे तौर पर अज भी वो घट नहीं करते। गुरु अंगद साहिब जी वेले विरोधता हुई, सतगुरु जी नूं नगर चों कढा दिता। गुरु अमरदास जी दे वेले विरोधता हुई और विरोधता के तरीके बड़े बड़े वधिया। बाबा दातू जी नूं चुक्या, आओ गद्दी तुहाडी, बाहरों ही आके मालक बन गए। उन्हां दी चुक च बाबा दातू जी भी आ गए। आके सतगुरु जी विराजमान ने, कीर्तन हो रहा है, दीवान चल रहा है, संगत गुरु की बैठी है। बड़े कबोल बोलते हैं बाबा दातू जी अंदर प्रवेश होए। सतगुरु जी मस्त ने, कीर्तन दे विच मगन ने। बाबा दातू जी ने जोर दी आके सतगुरु जी नूं लत्त मार दी। हुण सतगुरु जी दे अगे हजारां लोग झुकदे ने, संगतां बैठियां ने, सतगुरु जी समर्थ ने। बाबा दातू जी को बहुत बलवान नहीं सन, लेकिन ये निर्माणता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने आप को संभालिया, बजुर्ग शरीर से उठे, बाबा दातू जी दे पैर फड़ ले कि बाबा जी मेरी गलती है, तुहाडे सत्कार विच मैं कुछ कीता नहीं, तुसीं लत्त मारी, तुहाडे पैर नूं सੱਟ तो नहीं लगी किते, मेरे हड्ड करड़े ने बुढ़े बारे, वैसे भी सेवा करदियां शरीर करड़ा हो जाता है। एक तो सेवा कर तरयो है, द्वितीया बैते बिरद पयो है, तांते अदक कठोर शरीरा तुमरे चरण मिरदुल नहीं थोरा। तुहाडे चरण को घट कोमल नहीं है, लियाओ कुट देवां। ये गरीबी है कि समर्थ ने सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज, कोई उन्हां दी कमी नहीं है, सच दे मार्ग ते चलदे ने, लेकिन उन्होंने फिर कोई कौड़ा वचन नहीं बोलिया बाबा दातू जी नूं। यह है रसना च मिठास, मन च निम्रता, इनू गरीबी किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। गुरु की पवित्र बाणी पढ़ के देख लो, गुरु रामदास जी की पवित्र बाणी पढ़ लो। समर्थ ने, समर्थ हुंदियां गुरु चरणा च अरदास करते हैं कि जो हमारी विध होती मेरे सतगुरा
सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते को बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, अपने आप नूं दासन दास, अपने आप नूं कीट, अपने आप नूं नीच। ये उन्हां दी गरीबी है, निर्माणत है। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं, किड्डी वड्डी उन्हां दी घालन है, मनुखता की किड्डी वड्डी उन्हां सेवा की है। किसी व्यक्ति की महानता इस विच नहीं है कि वह किन्ने साल लुक के बैठा तप करता रहा है, या किन्ने साल वह जंगलों च बैठा है, या किन्ना को उन्हें अपनी जायदाद छड्ड के ते वह घरों मलंग हो के घर घर मंग के रोटी खाण लग पे। महानता जदों भी गिनी जाएगी या गिनी जाती है कि उस मनुख ने मनुखता लई की कीता है, समाज लई की कीता है। गुरु साहिबान ने मनुखी सभ्यता नूं बचाउण लई, उच्चियां करन दे लई अपनी जिंदगी लेखे लगा दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मनुखता लई जो कार्य किए, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपादना, श्री हरमंदिर साहिब जी की सिरजना, नगर वसाउने, सरोवर बनाने, अपने हथी मनुखता की सेवा। ये जो बाबा पृथ्वी चंद जी विरोधता भी करते हैं, कोई कौड़ा बचन नहीं उन्होंने, जे मंगते कुछ दे देंगे ने। इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने पवित्र बाणी पढ़ो, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, इस आगे को ना टिके विकारी। सतगुरु जी कहते साडे कोल ते गरीबी दी गदा है। मैं फिर बेनती कर, गरीबी का अर्थ बाहरला दलिदर नहीं है, या शरीरक दलिदर नहीं है। गरीबी का अर्थ है मन की निर्माणता, हंकार तो रहत जिंदगी। गरीबी का अर्थ बचना च मिठास, दूजे दियां भुल्लां नूं माफ कर देना। इदों वड्डा जुल्म की हो सकता है। बाबा पृथ्वी चंद जी ने 3 वेरां इहो जे कातलाना हमले किए साहिबजादा हरगोबिंद साहिब जी ते। किसी दे बच्चे ते कोई इदां दी गल करे सी, गृहस्थी कौन बर्दाश्त करता है। सतगुरु जी समर्थ सन, उन्हां कोल किन्ने बहादुर सिख सन, लेकिन सतगुरु जी ने कोई कौड़ा वचन नहीं बोलिया। आखिरी समय तक समर्थ हुंदियां तत्ती तवी ते बैठ के कष्ट भी झल ले, अपना आप निशावर कर दिता, लेकिन वो जिहड़ी गरीबी सी ना, उन्होंने हथों त्याग्या नहीं है। तुसीं जिस भी गुरु साहिब जी के दीदार करोगे, पवित्र बाणी पढ़ोगे, संगत गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज का पावन प्रकाश पुरब मना रही ने, कुछ ने मनाउणा है। उस महान सतगुरु जी का जो जीवन इतिहास पढ़ते हैं ना, उन्हों की जिंदगी च गरीबी त्याग जिहड़ा है ना, वो कुट कुट के भरिया पिया है। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जिंदगी का इतिहास। बाबा बकाला नगर साहिब जी विच विराजमान ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने ये बख्शिश भरे बचन कह दिते कि बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत आप संभाले। गुरसिख सतगुरु जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद सारे समागम तो वेले होके वो गुरता गद्दी की जो रस्म करन दे लई, मर्यादा करन दे लई, गुरु के बचन इत्थे लियाउण लई बाबा बकाला साहिब की धरती ते आ गए। सतगुरु जी आनंद च बैठे, रबी प्यार में जुड़े हुए ने। संगतां ने आके गुरता गद्दी की जो मर्यादा सी की, तिलक दे दिता, वडियाई दे दी, लेकिन आप जी ने कोई अडंबर नहीं किया। आप देखते हैं कुछ लोगों के विच वो गुण नहीं हुंदा, अडंबर बहुत करते, नुमाइश बहुत करते, दिखावा बड़ा करते, प्रचार बड़ा करते हैं। अज जिस दौर च असीं गुजर रहे हैं, आप देखते हैं जिन्हां दी गल गुरबाणी सतगुरु जी ने की है, एक है जानन कहया बुझन ते नर सुगुर स्वरूप। अगे सतगुरु जी का बचन है, एक न नाद न बेद न गी रस, रस कस न जानंत, नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत। बिना गुण तो ही कई हीरो बने फिरते ने, सिर्फ मीडिया के जोर ते, सिर्फ अडंबर के जोर ते, दिखावे के जोर ते। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कोई अडंबर नहीं किया। एक बने धीरमल बैठा है, होर कई गद्दियां ला के बैठे ने, जिन्होंने अपने एजेंट रखे हुए ने। धर्म की दुनिया च भी लोग एजेंट रखते हैं, अज भी बड़े धार्मिक लोग ने जिन्होंने लोगों अपने मगर लाने लिए ना एजेंट रखे हुए ने, अपनी प्रभुता अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए बड़े एजेंट रखे हुए ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी आनंद च ने, धीरमल उहदे साथी जां होर जिहड़े बैठे ने उन्हां दे साथी आईयां संगतां नूं अपने वाल लई जांदे, यही गुरु वड्डा है, यही गुरु वड्डा है। क्योंकि जद धर्म की गल आउंदी है ना, मनुख ने बाजार विचों कोई चीज़ लैनी होए,
वो बड़ी सियाणप वरतदा है, सूझबूझ नाल खरीददा है, किसी नूं पुछदा है, क्वालिटी देखदा है, उहदी कीमत भी परखदा है इधर उधर। लेकिन धर्म की दुनिया च मनुख परखदा नहीं है। सब तो वड्डी ठगी जिहड़ी है वो धर्म की दुनिया च ही वज सकती है और वज रही है। मनुख जे गुमराह हुंदा है तो धर्म के नां ते। देखो लोक व्यापारी ने, किरती ने, आपो अपने कामां च मस्त रहिंदे ने बड़े सोहणे, पर आउंदे ने कुछ इहो जिहे शरारती लोग धर्म के नां ते लोकां नूं लड़ा दिंदे ने। धर्म के नां ते लोकां नूं लड़ाया जा सकदा है, धर्म के नां ते जिथे मर्जी मत्थे टिकाए जा सकते हैं, धर्म के नां ते लोकां दी दसां नौं दी किरत नूं लुटिया जा सकता है। और साडे सतगुरु जी ने इसे करके कहा सी, अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बूझी है, अकली कीचै दान। वो रब वाले पासे भी जोड़ना है तो अकल की लोड़ है, सूझबूझ की लोड़ है। ये नहीं कि जिथे मर्जी मत्था टेक दो, कहो जी रब नूं मत्था टेक दिता है, जिधर मर्जी तुर पो, देखो जी असीं ते रब वाले बन्ने लगे हुए हैं। रब वाले लगन पासे लगन लिए भी अकल की लोड़ है। बहुत सारे लोग ये झूठ दे व्यापारियों ने मगर लग गए। गुरु का एक सिख विवेक मत दा धारणी शब्द गुरु नाल जुड़िया। बाबा मक्खन शाह जी लोबाना जेड़े किरती सन, व्यापारी सन, ये गुरु के दीदार करने लिए आउंदे ने। इन्होंने अपनी विवेक मत नाल परखिया, जान लिया कि ये सब पखंडी ने, ये सब अडंबर कर रहे हैं। पहुंच गए सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी को। दर्शन देख उतरी भुख, गुरु के दीदार करदियां ही देखो सतगुरु दे दीदार ही मनुख नूं अपने वल खिंचदे ने। गुरु के दीदार करदियां आनंदित हो गए। कोठे ते चढ़ के एक इन्होंने होका देता, भुलियो संगतो गुरु ला दो रे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं प्रगट किया। गुरु साहब जी दे कोल संगतां ने आउणा ही सी गुरु की वडियाई सुन के। लेकिन जिन्हां नूं सच पसंद नहीं हुंदा, जिहड़े झूठ दे पुजारी ने, जिवें कह लो उल्लू नूं सूरज चंगा नहीं लगदा, अजिही सोच वाले लोगों ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के विरुद्ध साजिशां रचियां, जिन्हां च आगू सी धीरमल। धीरमल ने अपने भेजे हुए कुछ लोगों के राही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते कातलाना हमला कर दिता, गोली चला दी। उन्होंने अस्थान तो जो भांडे सन, रस्तां सन, बस्तां सन, जो कुछ हाथ आया वो लुट के लैके चले गए। भाई मक्खन शाह जी नूं पता लगता है, आउंदे ने वो धीरमल के डेरे ते जाके उन्होंने बन्नदे ने जिन्हां ने लुटिया डेरे नूं, ते सतगुरु जी दे कोल सारा साजो समान लै आउंदे ने। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी समर्थ ने, भाई मक्खन शाह जी वर्गे होर अनेकां सिख उन्हां दे कोल ने। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप भी बहादुर ने। आप भी सतगुरु जी ने करतारपुर की जंग विच वीरता दे जौहर दिखाए ने। तेग दे धनी सन सतगुरु सच्चे पातशाह जी। लेकिन सतगुरु जी की एक गरीबी है, निर्माणता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते गोली भी चलती, सतगुरु जी कोई कौड़ा बचन नहीं बोलते। जिस वेले भाई मक्खन शाह जी उन्हों का साजो समान या उन्होंने लैके आते हैं, उसके सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने की सज़ा दी जाए। तो गुरु साहब जी ने देखो अपने इस बिरद नूं निभाउंदियां की गल की, मक्खन शाह धीरमल दे बंदे आए, साडा समान चुक के लै गए, तेरे बंदे गए उन्हों का चुक लियाए, साडे दोवां च फर्क की रह गया? हुण असीं ते इक्को जिहे हो गए ना। मोड़ दिओ सब कुछ, सानूं नहीं चाहिदा, किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन उस वेले की जो भीड़ सी, वो धीरमल के डेरे तो जिहड़ी अज करतारपुर साहिब पई है, भाई मक्खन शाह जी लै आए। ते सतगुरु जी ने एको गल की कि धक्के नाल लिया होया अमृत भी जिहड़ा वो प्रवान नहीं है, धक्के नाल जोर नाल लिया होया दे दिओ ये सब कुछ। इनू गरीबी कहा जाता है। मत होंदी होए अण, तन होंदे होए नितन, अण होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। ज्ञान है, समर्था है, ताकत है, सब कुछ होंदियां होया निर्माणता रखनी, किसी नूं मुआफ कर देना, खिमा कर देनी, उहदे प्रति कौड़े बचन ना बोलना। असीं देखते हैं गुस्से दे विच आपां की कुछ बोल बैठदे कई वारी विरोधियों के प्रति। समाज दे विच विगाड़ कदों आउंदा है? जदों असीं माड़ा बोलते हैं। गुरु बाबा जी ने कहा कि गरीबी का अर्थ है कि किसी नूं कौड़ा नहीं बोलना, बुरा नहीं कहना। देखो ख्यालों की विरोधता हो सकती है, ये चलती रहिंदी है, लेकिन बोलों दे विच कुड़तन नहीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आउण दित्ती। इत्थे बस नहीं है,
गुरु तेग बहादुर साहब जी का तुसी इतिहास पढ़ो ना, सतगुरु जी इथों उठ के अमृतसर साहब जी जाते हैं गुरु के दीदार करने के लिए, अमृतसर हरमंदिर साहब जी के दीदार करने के लिए। उत्थे दे पुजारी दर्शनी जोड़ी के दरवाजे बंद कर देंगे ने, सतगुरु जी को अगे ही नहीं जान देंगे। हुण आप जी गुरता गद्दी ते बैठे ने, नाल भाई मक्खन शाह जी ते होर किनियां संगतां ने। जे चाहुंदे ते उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी जा सकते सन, कोई रोक नहीं सी सकदा उन्हां नूं। सतगुरु जी जिवें अजकल नहीं आपां देखदे, गुरुद्वारियां दे अंदर एक धड़ा है तो दूजा डांगा लैके वड़ जांदा, डांग सोटे चलदे, पग्गां लथदियां, लहू लुहान हो जांदे। असीं कहंदे जी असीं पंथक, वो कहंदा असीं पंथक, असीं पंथ दा जुलूस कढ के रख दिंदे आ। और मीडिया भी जिहड़ा है ना साडे चंगे काम नूं नहीं प्रचारदा, वो तो देखदा रहिंदा है कि गुरुद्वारियां च कल कलेश कदों होए ते लोकां दे सामने कदों लिआंदा जाए। मेरा कहण तो भाव कि गुरु तेग बहादुर साहब जी समर्थ सन, वो उस स्थान ते उन्हां दा हक सी, अधिकार सी, वो कर सकते सन उत्थे जाके कुछ। लेकिन उन्होंने कोई पकड़, कोई विरोधी भावना, कोई माड़ा बचन नहीं बोलिया। सतगुरु जी थड़ा साहब जी के स्थान पर बैठे, नमस्कार की, उथों उठ के वल्ले विच आ गए, किसी ने कोई बुरी गल नहीं की। ये उन्होंने गरीबी है, निर्माणता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समर्थ होंदियां होया भी किसी ने कुछ नहीं किया। इत्थे बस नहीं, जे कीरतपुर साहब जी आउंदे ने, उत्थे भी उन्होंने वातावरण देखिया कि इत्थे भी कल नूं ईरखा की गल शुरू हो सकती है, हर किसी की पकड़ है। सतगुरु जी उत्थों भी उठ जाते हैं। गल की है कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, किसी भी गुरु साहब जी का इतिहास तुसीं पढ़ो, उन्हां दे अंदर वो गरीबी, निर्माणता वाहिगुरु जी ने कुट कुट के भरी हुई है। तो सानू भी साडे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये दात दी है विरसे दे अंदर कि गुरमुख हृदय गरीबी आवे, होए निमाणा टह पवे, दरगे बाण निमाणा पावे। कि गुरु दी मत दे राई हिरदे दे अंदर निर्माणता आनी चाहिए है, गरीबी आनी चाहिए है। हर जो अहंकार ना पावी, अहंकार दा सिर सदा नीवा हुंदा है। गुरबाणी च बड़ियां उदाहरण भरियां हुई ने। बाबा नामदेव साहब जी की जदों गल की, धन गुरु रामदास जी कहते अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया। परमात्मा ने अहंकारियां नूं पछाड़ दिता, नामदेव नूं वडियाई देती। भाई गुरदास जी का बचन है कि दरगह मान निमाणा पावे। गुरु रामदास जी के पवित्र वचन ने कि हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवावे। परमात्मा मान निमाणिया नूं दिंदा है, जिन्हां दे अंदर निर्माणता है। और बाबा फरीद साहब जी ने एक बड़ी प्यारी गल की, ये निर्माणता बड़ी अमोलक है। ये गरीबी जिहड़ी है ये बड़ी महान है। गरीबी दा अर्थ बाहरला दलिदर नहीं, जां बाहरों एवें लीरां लमकदियां, ये गरीबी नहीं। गरीबी दा अर्थ मन की गरीबी, मन की निर्माणता। बाबा फरीद साहब जी ने एक गल कही है कि जे असीं गुरु के दर तो कोई दात लैनी है ना, उहदे लई गरीबी बड़ी जरूरी है। गुरु की दात, गुरु की बख्शिश टिकदी ही उन्हां हिरदियां च है जिथे निर्माणता है, जिथे गरीबी है। बाबा फरीद साहब जी का एक बचन है कि जदों मीह पैंदा है ना, उदों पानी जिहड़ा ना उच्चे थावां ते नहीं रुकदा, पानी निमाण वल चलिया जांदा है। बाबा साहब जी कहते हैं कि फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां धन जोबन आगाह, खाली चले धनी सियों टिब्बे ज्यों मियाह। जिन्हां दे हिरदे च हंकार है वडियाइयां दा, रुतबियां दा, धन दा, जोबन दा जां होर किसी चीज दा, कोई भी हंकार भावें धर्म दा भी क्यों नहीं है, सब तो ज्यादा खतरनाक है धर्म दा हंकार। आम आपां देखदे सप बड़ा खतरनाक हुंदा है, जदों सामने आ जाए ना तो असीं दौड़ भज करके कोई अपना अपना बचाव कर लैंदे आ, जां उहनूं मार दिंदे जां आप आसे पासे हो जांदे आ। सप खतरनाक है, लेकिन असीं अपने बचाव का कोई काम कर लैंदे आ। पर सप नालों भी खतरनाक है गुड़ विच दित्ती हुई जहर। गुड़ च दित्ती जहर का पता ही नहीं लगता, बंदे नूं खाई जांदा स्वाद दे नाल। घातक है, वो बड़ी खतरनाक है। कोई धन का हंकार करे, कोई रुतबे का हंकार करे, कोई जोबन जवानी का करे, कोई दौलत का करे, कोई दुनिया का करे, खतरनाक है। लेकिन ये नालों ज्यादा खतरनाक हंकार है धर्म का हंकार होना कि मैं बड़ा धर्मी हाँ। और धर्म के हंकार ने मनुखता का बड़ा नुकसान किया।
बाबा फरीद साहब जी कहते गुरु के दर ते आया हुआ हर प्राणी, देखो सतगुरु जी का एक विरद है, कोई मनुख खाली नहीं जाना चाहिए। सतगुरु के दर तो हर कोई वरसाया जाना चाहिए। गुरु का यह विरद है कि गुरु ते ना वरखा ही कर रहा अपने दर ते, हर आए मनुख ते रहमतां दी वरखा कर रहा, बख्शिश कर रहा। जिवें बदल होंदा है ना, बदल जिहड़ा वो वरखा करता है। बदल कोई वितकरा नहीं करता, गरीब अमीर दे खेत नाल कोई वितकरा नहीं करता बदल जिहड़ा। लेकिन जिहड़े उच्चे थां ने उत्थे बदलों का पानी टिकदा नहीं है, रिड़ जाता है। गुरु बदल दी नहीं आई है। गुरु समुचे संसार ते बख्शिश कर रहा, हर प्राणी ते बख्शिश कर रहा। कारण की है? जे गुरु अपने दर तो हर मनुख ते रहमतां दी वरखा कर रहे है, असी खाली क्यों रह जाते हैं? असी वरसाए क्यों नहीं जाते? असी उस जिंदगी च जो गुरु सानू देना चाहता है कामयाब क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण यह है कि साडे अंदर किते ना किते नुक्कर च किते ना किते हंकार लुकिया होया कि मैं तो बड़ा विद्वान हाँ, मैं तो बड़ा सेवादार हाँ, मैं तो देखो जी बड़ा महान है। गुरु के दर ते आके भी असी महानता दर्शाना चाहते हैं। दुनिया च होए वो अलग गल है, लेकिन गुरु के दर ते आके भी असी दसना चाहते कि असी घट नहीं है, देखते नहीं है। अरदास करते में कहने कि फलाना सिंह असी हाँ, साडा नाम जिहड़ा होना चाहिए, अनाउंस कर दिओ, लिख दिओ। असी दर्शाना चाहते कि असी बहुत दानी हाँ। बाबा फरीद साहब जी कहते गर्भ जिन्ना वड्याइयां धन जोबन आगाह, खाली चले धनी सियों टिब्बे जो मियाह। दुनिया के लोगों जिन्ना लोगों के अंदर किसी भी तरह का हंकार है वो गुरु के दर तो वांझे रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। गुरु के दर तो वरसाए जाते जिन्होंने अंदर निर्माणता होंदी है, गरीबी होंदी है। और सतगुरु जी ने सानू दात ही गरीबी दे दी है। और गुरबाणी कहती जिन्होंने हिरदे च निर्माणता होंदी वो महान बन जाते, उच्चे उठ जाते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह जी का दरबार सजिया है, पाउंटा साहिब की धरती है। सतगुरु जी की आरजा उन्होंने दिनों च कोई 19-20 साल के तकरीबन सी। सढौरे के रहने वाले एक पीर जी जिहड़े बड़े सत्कारयोग पीर होए ने, साईं पीर बुद्धू शाह जी, जिथे धार्मिक जग च उन्हां दी बहुत वडियाई है, उत्थे राजनीतिक घराणियां च उन्हां दी बड़ी शोभा है। वो बड़े मन्ने परमन्ने ने। उन्होंने सुनिया कि गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते बैठे हुए जिहड़े 10वें गुरु ने वो साडे इलाके च आए ने। इन्हें अपने चेलियां नूं कहण लगे चलो उन्हां दे दीदार ही पा आईए। असीं रबी प्यारियां नूं रबी प्यारे मिलते ने। एक ख्याल आया कि उन्होंने पिता नूं शहीद कर दिता है औरंगजेब ने, किते मैनूं मुसलमान होने के नाते कोई मिलनी ना, मिलने तो इनकार कर देन जां कोई मेरे नाल ईर्खा करन। फिर ख्याल आया नहीं, रब दे प्यारियां दा रब दे प्यारियां नाल मेल हुंदा ही है। अपनी सेवकां नूं नाल लैके चल पे। गुरु का दरबार सजिया होया है, कीर्तन हो रहे है। सतगुरु जी सिंघासन ते सुभाईमान ने। गुरु के सूर में जोधे फौजी बैठे हुए ने दरबार च, कवि जन बैठे हुए ने, गुरु की संगतां दूर दराडे तो साधु महात्मा बैठे हुए ने। बड़ा सुंदर दरबार सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जमुना के कंढे ते। साईं ने प्रवेश किया गुरु दरबार अंदर। पहली नज़र सतगुरु जी ते पई है। ख्याल आया इन्हां दी ते उम्र ही बड़ी निकी जी है। मैं बजुर्ग हाँ, मैं इन्हां मन्निया पर मन्निया। मेरे नाल मेरे किन्ने मुरीद ने जिहड़े मैनू पीर जी कह के सत्कारदे ने। मैं इस बच्चे नूं मत्था टेक देवां? मैं बजुर्ग हाँ, वड्डा हाँ। एक ख्याल ने मन विच। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समर्थ सन। आम दुनियावी लोग भी कई जड़े ने मत्थे नूं देख के जांच लेंदे कि अंदर गल की, पर सतगुरु जी समर्थ सन। मत्थे नूं सतगुरु जी ने पढ़ लिया। पीर जी ने सतगुरु जी नूं हाथ जोड़ के नमस्कार कीती है, झुक के वंदना नहीं की। सतगुरु जी कराउणा भी नहीं चाहुंदे किसी कोलों। सतगुरु जी ने कि आओ पीर जी किवें आउणे होए, बैठो बराजो। कोल बिठा लिया पीर नूं। महाराज जी गुरु नानक साहब जी के घर तो कोई दात लैण लई आए हैं, कोई मेरी झोली च भी कोई खैर पै जाए। सतगुरु जी हस के कहणगे पीर जी जिहड़ियां झोलियां पहलां ही भरीआं ने उत्थे होर की पै सकदा है। पीर कहण लगा मैं समझिया नहीं। सतगुरु जी कहंदे समझण वाली किहड़ी गल है? बर्तन पहलां भरिया होए ना, उहदे च होर की पाया जा सकदा है, जां ते उहनूं खाली कीता जाए। पातशाह समझा दिओ। सतगुरु जी कहणगे पीर जी तुसीं ते पहलां ही बहुत वड्डे पीर हो, तुहाडी इन्नी मुरीदी है, इन्ने सेवक ने, इन्ना सत्कार है,
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਮਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਘਸੇ ਤਵੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮੀ ਕਮੀਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੂਦਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪੱਥ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਕ ਬਕੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਮਨ ਸੁ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਿਠਾਸ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤਤ ਹੈ, ਤਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ
फिर असी झुक भी जाने, किसी दियां माड़ियां गल्लां भी असी कुछ चली सह लेने, पर अंदरों अंदर असी सड़ते रहने कि मौका मिलेगा तो फिर कसर कढ़ांगे। यही कुछ है ना आप देखते, सब को निवें आप को पर को निवें ना कोई। अपने स्वार्थ लई हर कोई निवना जानदा है, झुकना जानदा है, पर दूजियां लई झुकना ये गल जिहड़ी है हर किसी दे हिस्से नहीं आई। सतगुरु साहब जी कहते ने का धरत राजू तोली है निवें सो गौरा होए। एक उदाहरण दी कि जे झुकण की गल होए ना, केवल झुकण की, अपराधी दूना निवै जो हंता मिरगाए। झुकण का अर्थ कला सिर झुकाउण तो नहीं है, कला मत्था टेकण तो नहीं है कि असी झुक गए हाँ, बड़े नीवें हो गए हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते एक तो शिकारी भी झुकदा है, अपराधी भी झुकदा है। अपने स्वार्थ लई बहुत दुनिया जो मतलब होए झुकदी रहिंदी है, लेकिन बाद विच देखो ना उन्हां दे तौर तरीके फिर पता लगदा है। अपराधी दूना निवे जो हंता मिरगाए। सतगुरु जी कहते अपराध करने वाला बंदा कई बारी दुगना झुक जाता है, नीवा हो जाता है, जिवें शिकारी जिहड़ा है जां एक तोप चलाउण वाला तोप जी झुक जाता है। पर सतगुरु साहब जी कहते नहीं, सीस देवाए क्या थिए जा हृदय कसुदे जाए। सिर झुकाउणा ही झुकना नहीं है, निमरता नहीं है। बाहरों केवल स्वार्थ दे लई कुछ बोल बोलना ही निमरता नहीं है। सतगुरु जी कहते हिरदे की निर्माणता, मन की निर्माणता वो हमेशा हर थां ते रहे, भावें अपने ने भावें बेगाने ने। गुरु नानक साहब जी महाराज ये महान दात लैके आए, बाबा पैंदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। गुरबाणी पढ़ो, सतगुरु जी ने उस गरीबी की थां थां ते गल की है। सतगुरु जी गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी, नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार। गुरु साहब जी दे जिथों भी तुसीं बन पढ़ लो, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। और मोको कार संतन की तूरे, मोक कीजे दास दास दासन को, नीचां तो नीच कीटां दे कीट। दशमेश पिता जी का इतिहास पढ़ लो तुसीं, समर्थ सन, कई तरह के हथियार चलाउण, शास्त्र विद्या विच बड़े प्रवीण सन सतगुरु सच्चे पातशाह जी। दुनियावी हर तरह की विद्या दे विच सतगुरु जी आमल फाजिल सन, हर तरह के सतगुरु जी कमाल सन। लेकिन उस कलगीधर पातशाह जी का तुसीं इतिहास पढ़ोगे, निर्माणता इन्नी है, अंदरों दिल इन्ना कोमल है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हों ने गुरु साहब जी की बाणी नहीं पढ़ी, जिन्हों ने गुरु साहबान का इतिहास नहीं पढ़िया, वो सतगुरु जी दीयां बाहरलियां गल्लां सुन के जां बाहरले रूप नूं देख के ना बड़े गलत जे ख्याल अपने मन च बनाई बैठे ने। बड़े बड़े सियाणे लोग, को आम लोगों की गल तुसीं छड्ड दिओ। गुरु कलगीधर पातशाह जी के प्रथाए तो कुछ लोगों ने ख्याल यही बनाया कि तो लड़ाके ही सन, लड़ाइयां ही करते सन। तो अज अपने समाज कुछ लोग ने जे उन्होंने पुछो, कहते असीं गुरु नानक जी के सिख हाँ जी, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी तो डर ही लगता है, कईयां नूं, बहुतियां नूं डर लगता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के मन च कितनी निर्माणता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी भंगाणी की जंग चल रही है, हरिचंद हजारजा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते हमलावर होके आया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सामने आ गया अपने जमाने का सब तो वड्डा तीर अंदाज, सब तो वड्डा तीर अंदाज। सतगुरु जी नूं कहण लगा, होर मावां दे पुत्र जो मरा रहे हैं आपस विच लड़ के फैसला कर लीए। सतगुरु जी कहंदे बड़ी वधिया गल है, कर वार मेरे ते। कहण लगा मैं पहला वार नहीं करदा हुंदा। सतगुरु जी कहंदे चढ़ के ते तू ही आया है ना, असी कदी वार नहीं करते, चढ़ के तू आया कर लै। हरिचंद ने एक वार किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे। इतिहास कहना कि वह सतगुरु जी के घोड़े नूं माड़ा जिहा लग के अगे चलिया गया। सतगुरु जी हस के कहने एक होर कर लै। हरिचंद ने दूजा वार किया, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पग दे कुछ पेच चीर के अगे चलिया गया। सतगुरु जी कहने एक होर कर लै, तेरे मन च किते ये मराल ना रह जाए कि एक तीर किते चला लींदा तो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार लेना सी, कर लै एक होर वार। किड्डी दरिया दिली है सतगुरु सच्चे पातशाह जी की। दुनिया दीयां जंगां दा इतिहास पढ़ के देखो तुसीं, वड्डे वड्डे सूरमियां ने लुक लुक के अपने विरोधियों नूं मारिया, वड्डियां वड्डियां ने लुक लुक के। कलगीधर पातशाह कहंदे कर लै तीजा वार, फिर तेरे मन च ख्याल ना रहे। उन्हें फिर तीर साधिया, निशाने ते अपनी कमान ते चाढ़िया, निशाना तकिया। वो तीर सतगुरु जी की बैल्ट विच कमर कसे विच आके लग गया, पेटी विच लग गया। वो तीर की कुछ चुंझ सतगुरु जी के शरीर नूं भी लगी। जिथे बचन लिखे ना जबे बाण लग गयो तबे रोह जागियो।
उत्थे सतगुरु जी कहते कि वाहिगुरु जी ने अपना कीट जान के मैनू बचा लिया, अपना सेवक जान के बचा लिया। और सतगुरु जी कहते मैं ते दास हाँ तुहाडा। किते सतगुरु जी की जिंदगी तुहानू इहो जी भावना नहीं। दुनिया जंगां जितदी है, दुनिया प्राप्तियां करदी है ते अपने गुण गाउंदे ने लोग कई। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गल देखो, जुद जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुविद्या लई। इत्थे बस नहीं है, कहेंगे इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। मेरे वर्गे गरीब तो बड़े तुरे फिरदे ने, मैं जे सजिया हाँ निवाजिया हाँ ते गुरु की संगतां की कृपा सदके इनू गरीबी किया जाता है, इनू निर्माणता किया जाता है कि सब कुछ है, समर्थ ने, पर बोलना च इन्ना प्यार इन्नी मिठास किते कुड़तन नहीं है। गुरु साहब जी जे विरोधी के प्रति भी गल करते हैं तो विरोधी के प्रति भी कोई कुड़तन नहीं है। उन्होंने बाणी पढ़ के देख लो, उन्होंने इतिहास पढ़ के देख लो। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी जिंदगी च इस गरीबी नूं हमेशा संभालिया, गुरु सिखां नूं इह गरीबी दित्ती। असीं गुरु चरणों च जदों भी आउंदे आ ना, देखो सब कुछ परमात्मा ने दिता होया, किसी मनुख नूं किसी नालों कुछ भी घट नहीं दिता होया। हर मनुख दे अंदर जिहड़े ने रतन जवेहर माणक भरे पे ने, सिर्फ तो सिर्फ थोड़ी गुरु पासों गरीबी लै लीए ताकि उस गरीबी दे नाल असीं अपने अंदर नूं जानण दे समर्थ हो सकीए, अपने अंदर असीं झात मार सकीए, उस गरीबी दे राही असीं अपने अंदर उतर सकीए। नहीं तो हंकार च ही उड़दे फिरदे, असीं कदी अपने वल नज़र ही नहीं मारी। हंकार सारे रोगों का कारण है। गरीबी दे विच हमेशा सुख भरिया पिया है। भाई गुरदास जी दे इस बचन तो गल शुरू की सी कि बाबा पैदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। ते भाई गुरदास जी कहते कि रब दे दर ते माण भी उन्हां नूं मिलदा है, दरगे माण निमाणा पावे। वाहिगुरू जी की वडियाई ये है, गुरु की वडियाई ये है कि गुरु के दर ते निमाणियां नूं सत्कार मिलता है। असीं भागां वाले हाँ, सानू अजिहे सतगुरु जी के सिख होने का मान प्राप्त है। जे सतगुरु जी ने किसी भी अपने विरोधी के लिए भी किते को माड़ा बचन बोलने की गल नहीं कही। असीं जदों अपने नूं माड़े बचन बोलते ना, उदों सानू देखना चाहिए कि असीं उदों गुरु के आसे अनुसार नहीं चल रहे। जे आपां सतगुरु जी के इस उपदेश नूं जिंदगी धारण कर लईए, साडे बहुत सारे मसले अपने आप ही नजिठे जाणगे, हल हो जाणगे। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु के ये पावन बचन साडे हिरदे च वसन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। मानयोग भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वाले बड़ा प्यारा रस पिन्ना कीर्तन करते हैं अदब के नाल। आप जी उन्हां पासों कीर्तन सरवण करो, भुल चुक दी खिमा करदे आं, प्यार सत बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।